ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پنجاب میں قومی اسمبلی کے 2 اور پنجاب اسمبلی کے 12 حلقوں میں ضمنی انتخاب 21 اپریل کو ہوگا۔ لاہور کے 4 صوبائی اور 1 قومی اسمبلی کے حلقے میں ضمنی انتخاب ہوگا۔ لاہور میں پی پی 147، پی پی 149، پی پی 158 اور پی پی 164 میں ضمنی انتخاب ہوگا۔ پنجاب کے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں قصور اور لاہور میں بھی ضمنی انتخاب ہوگا۔ احوال جانیں گے، لیاقت علی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیاقت، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو حلقے خالی ہوئے ہیں نشستیں، ان پہ ضمنی انتخاب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 21 اپریل کو جو ہے اس کے لیے پولنگ ہوگی۔ لاہور کے 4 صوبائی حلقے ہیں جن میں یہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ ان میں پی پی 149 کی وہ نشست ہے جو علیم خان نے چھوڑی ہے۔ اسی طرح جو ہے 2 نشستیں جو ہیں پی پی 158 اور پی پی 164 یہ شہباز شریف نے چھوڑی ہیں، اور پی پی 147 کی نشست جو ہے وہ حمزہ شہباز نے چھوڑی ہے۔ جبکہ حلقہ این 119 جو کہ لاہور کا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، یہاں پر جو ہے یہ نشست جو ہے مریم نواز کے صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے سے خالی ہوئی ہے، اور قصور کی نشست جو ہے وہ شہباز شریف نے لاہور کے حلقہ میں رہنے کا جو ہے وہ حلقہ رکھا ہے اور قصور کی نشست چھوڑ دی تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ پنجاب کے جو دیگر اضلاع ہیں جن میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے، ان میں تلا گنگ ہے، گجرات ہے، وزیر آباد ہے، نارومال، پکھر، احتجاج خان اور ڈی جی خان کے حلقے شامل ہیں۔ تو مجموعی طور پر صوبائی اسمبلی کے جو ہے وہ پنجاب کے 12 حلقے ہوں گے، جبکہ لاہور کے 4 صوبائی حلقے ہوں گے اور 1 قومی اسمبلی کا حلقہ ہوگا جس میں 21 اپریل کو ضمنی انتخاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیاقت علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات کار بڑھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کو رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ اوقات کار پر عمل درآمد کے لیے زونل اور جنرل مینیجرز کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوقات کار بڑھانے کی ہدایت کی تھی۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کو یومیہ 500 روپے افطاری الاؤنس بھی ملے گا۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے احوال جانیں گے۔ عبدالقادر، بتائے گا اوقات کار میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور کے اوقات کار بڑھانے کی ہدایت دی تھی، جس کے بعد رمضان المبارک میں جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو جو ہے وہ رات 11 تک کھولا جائے گا، اور اب رات 10 بجے تک کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹور کے اوقات کار کو بڑھایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وزیر اعظم کی جانب سے جو ریلیف فراہم کیا گیا وہ پہنچ سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوٹیلیٹی سٹور کے اوقات کار بڑھانے کا جو ہے وہ ہدایت دی تھی، جس کے بعد جو زونل اور جو مینیجر ہیں ان کو جو ہے وہ نئے اوقات کار کے متعلق جو ہے احکامات جاری کر دیے گئے، اور اس حوالے سے یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کو بھی یومیہ 500 روپے افطاری الاؤنس بھی فراہم کیا جائے گا، کیونکہ اب یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین بھی رات 10 بجے تک جو ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر اپنی خدمات پر انجام دیں گے، جس کی وجہ سے ان کو یومیہ 500 روپے افطاری الاؤنس فراہم کرنے کا جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کو چاند رات تک افطاری الاؤنس دیا جائے گا، اور یوٹیلیٹی سٹور کے جو اوقات کار جو نئے جاری کیے گئے ہیں وہ چاند رات تک جاری رہیں گے۔ ٹھیک ہے، عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مہنگائی کی لہر شہریوں پر ڈھانے لگی ہے قہر۔ مصنوعی مہنگائی کرنے والے مافیا بھی بے لگام ہیں۔ حکومتی مشینری کے سامنے گراں فروش ڈٹ گئے۔ چند روز میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں 70 سے 80 روپے کلو اضافہ کر دیا۔ لاہور کی مارکیٹوں میں گراں فروشی سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں جانیں گے۔ سہیل کیسر ہمارے ساتھ ہیں۔ سہیل، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں، ماہ مقدس کا آغاز ہوئے اب کچھ روز گزر چکے ہیں، اور امید تو یہی تھی کہ جو ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہے ماہ سیام سے قبل 2-4 روز کے بعد اس میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس حوالے سے ابھی کچھ زیادہ کوئی مثبت خبر نہیں ہے۔ اگرچہ انتظامیہ کی طرف سے بار بار اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ گراں فروشی کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں، FIRs کاٹی جا رہی ہیں، لوگوں کو جیل بھجوایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے وہ یہ تمام اقدامات جو ہیں ان سے کچھ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پا رہے، اور یہی شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر بہت سارے شہریوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی تو ایک بڑی کامن ہم نے کومنٹس ہمیں سننے کو ملے شہریوں کی طرف سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب حکومت خود ہی بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں، مختلف ٹیکسز کی مداد میں عوام کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کے لیے کوشاں ہے،
तो फिर वो किस तरह से ग्रां फरोशी को नकेल डाल सकती है या किस तरह से ग्रां फरोशों को ग्रां फरोशी से रोक सकती है। और इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला है वो महंगाई का है। महंगाई की लहर जो है उसने पहले ही लोगों के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया है, और अब इस माह मुक़द्दस के दौरान जो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है तो इसको सिर्फ अफसोसनाक ही करार दिया जा सकता है, या फिर थोड़ी बहुत ये उम्मीद रखी जा सकती कि हो सकता है कि कुछ सूरत हाल में बेहतरी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो उसके आसार दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है सुहेल कैसर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रहमतों और बरकतों का महीना शुरू होते ही मसाजिद की रौनकें भी बढ़ गई हैं। नमाजियों की तादाद में इजाफे के साथ सफ़ों की ख़रीदारी भी बढ़ गई है। एक साल में सफ़ों की कीमत में 20 से 30% का इजाफा हुआ है। मज़ीद अपडेट लेंगे सामिया सईद से। सामिया, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक रहमतों बरकतों वाला महीना है। इस महीने जहाँ पर ये देखा जाता है कि मसाजिद और मदरसों में जो है वो नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तरावी पढ़ने के लिए आते हैं। वहीं जो है वो सफ़ों की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पर सफ़ों के दुकानों पर जो है वो रश भी बढ़ गया है। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आपके पास कौन कौन सी किस्म की सफ़ें पड़ी हुई हैं, साथ में ये भी बताइएगा कि कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। जी, सफ़े तो हमारे पास हर क्वालिटी की मिल जाती हैं, हल्की अच्छी उससे भी अच्छी। और जहाँ तक कीमतों में इजाफे का बात है, वो पिछले सीज़न की निस्बत इस साल 20 से 30% इजाफा हुआ है। और लोगों की पसंद रश जो है वो भी पिछले साल से बेहतर है। बाकी और क्वालिटी फॉर्म इसके पीछे लगता है, लेबर इसकी उसमें भी इजाफा हुआ है। महंगाई के साथ साथ सब कुछ है, जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है उसी तरह हर चीज़ की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है जहाँ महंगाई में इजाफा हुआ है वहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि सफ़ों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मगर फिर भी शहरी यहाँ पर आ रहे हैं सवाब कमाने की नीयत से और सफ़े ख़रीद के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सामिया, अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। रहमतों के महीने में अब्र रहमत, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने वाली हवा से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिकॉर्ड किया गया। अहवाल जानेंगे, जैन अली हमारे साथ हैं। जैन, मौसम का अहवाल बताइए। आज बिल्कुल बागों के शहर लाहौर में जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इस बूंदाबांदी के बाद शहर लाहौर की शिद्दत में इजाफा जो है वो भी जो है वो देखने में आ रहा है, जबकि इस वक्त शहर लाहौर में हवा ठंडी हवा चलने का सिलसिला है वो भी जारी है। महकमे मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक इस वक्त लाहौर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि इस वक्त शहर लाहौर का जो मौसम है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री जबकि कम से कम 13 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त शहर लाहौर में 59 हवा में जो नमी का तनासब है 59% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी तो इस बूंदाबांदी के बाद शहर लाहौर की फिजाई आलूदगी में जो है वो बेहतरी नजर आ रही है। जबकि सुबह के वक्त शहर लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 200 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि इस बूंदाबांदी के बाद इस वक्त शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 176 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि शहर लाहौर अभी तक भी जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर जो है वो मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो बूंदाबांदी का सिलसिला है ये यूं ही रात गए तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। जी ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सूबाई सेक्रेटरी सयाहत की टूरिज़म और मजहबी सयाहत बारे ब्रीफिंग। 7 रोज़ में जामे पंजाब टूरिज़म प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज़ का पंजाब भर में टूरिस्ट साइट की मैपिंग करने का भी हुक्म जारी। पंजाब में वैसाखी मेला मनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। अहम ये खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, सूबाई सेक्रेटरी सयाहत की टूरिज़म और मजहबी सयाहत बारे ब्रीफिंग। 7 रोज़ में जामे पंजाब टूरिज़म प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज़ का पंजाब भर में टूरिस्ट साइट की मैपिंग करने का हुक्म जारी। पंजाब में वैसाखी मेला मनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं अहम इजलास में अहम फैसले किए गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि PSL के दौरान ग्रीन बेल्ट्स का इस्तेमाल, हाईकोर्ट का हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। PHA का
वाज़ेह हुक्म, और इस हवाले से PHA की जानिब से हुकाम ने PCB से किराया वसूल करने में नाकामी जाहिर की है। PHA के 3 डायरेक्टर जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक हफ्ता कबल PCB से रिकवरी का हुक्म दिया था। अपडेट लेंगे, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। आज हाई कोर्ट की तरफ से PSL के दौरान ग्रीन बेल्ट के इस्तेमाल का किराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेने का हुक्म दिया गया, लेकिन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के हुकाम ताहाल हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने से कासर हैं और PHA के डायरेक्टर्स किराए की वसूली के लिए मरासला लिखने से मुतल्लिक ही तजब्जुब का शिकार हैं। मौजूदा सूरत हाल में PHA के 3 डायरेक्टर किराया वसूल करने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA, प्रोजेक्ट डायरेक्टर केनाल बैंक और प्रोजेक्ट डायरेक्टर बागे जिना किराए की जिम्मेदारी लेने से आ रही हैं। PSL के दौरान मुबैना तौर पर PHA के ग्रीन बेल्ट का इस्तेमाल किया गया और मॉल रोड ग्रीन बेल्ट, जेल रोड ग्रीन बेल्ट और केनाल रोड ग्रीन बेल्ट को इस्तेमाल किया गया। इन ग्रीन बेल्ट में पोल लगाए गए और जनरेटर रखे गए, जिसकी वजह से घास और पौधों को नुकसान पहुंचा। इसी बिना पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक हफ्ता कबल PHA को PCB से रिकवरी का हुक्म दिया था और ये भी अहकाम जारी किए थे कि फिलफोर जो किराए की रकम है वो PCB से वसूल की जाए, लेकिन PHA इंतजामिया की तरफ से ताहाल ये मरासला नहीं लिखा गया। इस तरह जहां लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, वहीं पर PHA को खसारे का सामना भी करना पड़ रहा है। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बड़ी खबर आपको दें कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का महकमा सेहत में कायम FM सेहत ज़िंदगी स्टूडियो का दौरा, लाइव और ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम में शरीक हुए और पैगाम रिकॉर्ड कराया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी जल्द स्टूडियो का दौरा करेंगी। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का महकमा सेहत में कायम FM सेहत ज़िंदगी स्टूडियो का दौरा किया है, जिसमें लाइव और ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम में शरीक हुए, पैगाम भी रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि FM सेहत ज़िंदगी स्टूडियो जदीद सहूलतों से आरास्ता है और देखकर इंतहाई खुशी हुई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जल्द ही FM सेहत ज़िंदगी स्टूडियो देखने के लिए दौरा करेंगी और FM सेहत ज़िंदगी स्टूडियो में कौमी हीरोज़ और मरूफ फनकार बुलाए जाएंगे और हिफ्ज़ान सेहत पर आवाम की आगाही के लिए पैगाम भी रिकॉर्ड करवाए जाएंगे, जबकि महकमा सेहत के तमाम इनिशिएटिव से मुतल्लिक आगाही के लिए सोशल मीडिया से भी इस्तेफादा किया जाएगा और महकमा सेहत की तफवीज़ करदा जिम्मेदारियाँ इंजाम देने में दिन रात एक करेंगे। और FM सेहत ज़िंदगी स्टूडियो के गर्ज और गाजियत पर डायरेक्टर हिस्टू का शुक्रिया अदा करते हैं और इन पर उनकी ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी राशिद अरशाद, CEO PHFMC डॉक्टर आसिम अल्ताफ और दीगर जो फैकल्टी थी भी मौजूद थी। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा गया कि सेहत जो FM स्टूडियो है इसके जरिए आवाम को जल्द ही जो है सेहत के मुताबिक एक नुमाया जो प्रोग्राम है वो भी शुरू करवाए जाएंगे। जी ठीक है, मोहम्मद बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफे हुसैन का पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा। CEO इजलास में हसन की बोर्ड के हवाले से कारकर्दगी और आइंदा के लाहे अमल बारे ब्रीफिंग। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि रोज़गार के नए मौके पैदा करने के लिए सूबे में नए सरमायाकारी लाना ज़रूरी है। पंजाब को सरमायाकारी का हकीकी हब बनाएंगे। लियाकत अली से अहवाल जानेंगे। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। शाफे हुसैन ने आज पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा किया। वहाँ पर CEO जलाल हसन ने बोर्ड की कारकर्दगी और आइंदा के लाहे अमल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी है। सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में 18 स्पेशल इकनॉमिक जोन बन चुके हैं और इस साल मजीद 6 खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन ने कहा कि रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए सूबे में नई सरमायाकारी लाना जरूरी है और पंजाब को सरमायाकारी का हकीकी हब बनाएंगे। ऐसे ममालिक में रोड शो किए जाएं जहाँ पे सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान आ सके। उन्होंने कहा कि जो पबेट है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी जल्द एक्टिवेट किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत ने कहा कि बोर्ड में ऐसे अफराद को लाया जाएगा जो सूबे में नई सरमायाकारी लाने में अपना फाल किरदार अदा कर सके। इस मौके पर शाफे हुसैन का कहना था कि सोलर पैनल की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए सोलर पैनल कंपनियों को भी राग़िब किया जाए। इस मौके पर जलाल हसन ने ब्रीफिंग में बताया कि पंजाब में बनाए गए 6 बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स अब तक 3685 NOC जारी कर चुके हैं। ठीक है, लियाकत अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।